Hello students, my name is Dr. Kauravi Shaha, Government Dungar College, Bikaner, Department of Geography. Yesterday I was talking on principles of human geography. The first principle I have discussed, that was principle of terrestrial unity or interrelationship. Today I will discuss on principle of activity or change. Principle of activity or change, the second principle, it denotes that change is present in nature. Everything in the nature is changeable. सब कुछ चेंज होते रहते हैं. All the physical, biological and cultural elements are changing over time. भौतिक हो, जैविक हो, व सांस्कृतिक तत्व हो, सभी चेंज समय के साथ साथ चेंज हो रहे हैं. Natural phenomena like mountains or plateaus, पर्वत, पठार or plains, rivers, forests, etc. and cultural phenomena व सांस्कृतिक phenomena like अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, फैक्ट्रीज, फार्म्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम व यातायात व्यवस्था etc. are constantly changing. The height of the, if we take some examples, the height of the mountain, the course of the river or the climatic conditions are being changed. Nowadays, the topic of climate change is discussed in every corner of the world. The natural vegetation is also changing. Deforestation is happening. Human cultural factors are मानवीय जो सांस्कृतिक कारक हैं, factors are also changed day by day. Customs and rituals of any society are getting changed. Educational development with the help of latest technological application is giving it a new shape. Medical advancement and progress in the field of healthcare facility lowers the mortality and morbidity rate. तो एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, इनमें भी हम चेंजेस देखते हैं. डेवलपमेंट हो रहा है, एडवांसमेंट होते जा रहे हैं. These earthly terrestrial phenomena never remain stationary. कभी स्थिर नहीं रहते. The principle of change is recognized and is used widely in the study of geography. This change is linked with time and space. समय एवं क्षेत्र के साथ इसका संपर्क है व जुड़े हुए हैं. Contributors इस थ्योरी का कौन कौन है व इस प्रिंसिपल की कौन कौन है? हार्टशॉन, कार्ल रिटर, W.M. डेविस stressed on the perspectives of terrestrial change. There are some forces behind these changes. अगर ये changes हैं तो इन changes व परिवर्तन के पीछे कुछ forces काम कर रहा है. वो forces क्या क्या हैं? The planetary system and the relation between Earth and other planets. पृथ्वी एवं पृथ्वी की चारों तरफ जो और planets हैं, इनमें जो relation है. Tectonic forces with which creates mountains, depressions, plate movement, earthquake, volcanism, etc. Solar power, सौर शक्ति, gravitational forces, biological forces और human forces. So these are the main important forces behind these changes. As the physical world is changing because of the endogenic and exogenic forces, अभ्यंतरीण व आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के द्वारा जो चेंज आ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड व भौतिक जगत में, द कल्चरल वर्ल्ड इज चेंजिंग ड्यू टू एनवायरमेंटल एंड कल्चरल फोर्सेस. इकोनॉमी passes through traditional society, preconditions of takeoff stage, drive to maturity stage, age of high mass consumption. अगर हम कोई एग्जाम्पल, ये S.D. मौर्य उनके ह्यूमन जोग्राफिक बुक में दिए हुए हैं, जो इकोनॉमी की अगर बात करें उसमें भी कितने चेंजेस हैं.
जब शुरुआत है तो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, उसके बाद एक टेक ऑफ करने की जो कंडीशंस है वो होता है, फिर टेक ऑफ जब करते हैं इकोनॉमी में, ब ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज में जब आते हैं, ब एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, जब लोगों के द्वारा व कंज्यूमर्स के द्वारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। इसी तरह से नोटस्टाइन डेमोग्राफर हैं, उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का भी बात किए हैं। ये भी एक चेंजेस हमें दर्शाते हैं, लाइक स्टेज ऑफ हाई ग्रोथ रेट, जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट खूब हाई था, स्टेज ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। फिर आते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट, ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। फिर स्टेज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज, फिर क्या होता है, थर्ड स्टेज में आते पॉपुलेशन डिक्रीज होना व कम होना शुरू करते हैं। The changes on earth is taking place over time and the special differences are found. अगर ये समय के साथ साथ जो चेंजेस हम देख रहे हैं, लेकिन इन चेंजेस में, समय के साथ साथ ये चेंजेस में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दृश्य हमें देखने को मिलता है। Population is increasing, people moving from one place to another, small urban areas are becoming big cities over time. Occupational structure of the society is also changing. So these are the examples of the changing which support this principle, the principle of activity or change. हम इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, जैसे परिवर्तन प्रकृति की एक नियम है। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी भौतिक या सांस्कृतिक पदार्थ, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वास्तव में विश्व में कोई भी वस्तु या तत्व स्थिर नहीं है। ब्रुनहेस ने भी यही कहा, हमारे चारों ओर जितनी वस्तु हैं वे सब परिवर्तनशील है। वातावरण में परिवर्तन की 3 प्रक्रियाएं हैं, भौतिक, जैविक एवं मानवीय। इन परिवर्तन के पीछे कई शक्तियां कार्य करती हैं, जैसे भौतिक शक्तियां, जो मैंने पहले कहा, फिर से मैं उसको दोबारा बोल रही हूँ। भौतिक शक्तियां व एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस, आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां, सौर शक्ति व सोलर पावर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति व ग्रेविटेशनल फोर्स व जैविक शक्ति व बायोलॉजिकल फोर्सेस। और क्या है, सांस्कृतिक शक्तियाँ, जैसे मानव एवं उसके विभिन्न जो कार्यकलाप हैं वो भी एक शक्ति है। भौतिक वातावरण में हमें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा अगर देखें, जैसे हिमालय पर्वत अपनी निर्माणावस्था से होकर युवावस्था से गुजर रहे हैं। हिमालय पर्वत एक दिन निर्माण हुआ था और अभी भी वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, तो एक युवावस्था से गुजर रहे हैं, एक परिवर्तन आ रहे हैं। वायुमंडल में भी विकास चक्र की अवस्थाएं, जैसे शीतकाल, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल आदि हमें मिलती हैं। तो इस तरह से जो चेंजेस व जो एक्टिविटी और चेंजेस हम देखते हैं, इस प्रिंसिपल को हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।